ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਸਤਿਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਚੰਗਾ ਮਕਾਨ, ਚੰਗੀ ਕੋਠੀ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਗਹਿਣੇ ਵਗੈਰਾ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ? ਪਿਛੋਕੜ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦੋ ਸਿੱਧ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਭਰਥਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੇਤੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ। ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ, ਰਾਜਾ ਅੰਬਰੀਕ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।
धार्मिक पक्ष नाल जिहड़ा भी मनुख जुड़िया है, अज भी देख लो बहुत सारे अमीर लोग ने, उन्होंने पुछो कोई किसी कारण करके दुखी है, कोई किसी कारण करके दुखी है। इत्थों सुखी होने वास्ते पिछलियां युगां तो लैके भगत आउंदे रहे, संत सहाई राम के, रब दे सहायक राम दे, परमेश्वर दे सहायक जिहड़े साधु जन हैं वह कारोबार चलाउंदे हैं। परमेश्वर आप बैठा देखदा है, अपने कार जिहड़े सेवकां नूं कारोबार सौंपिया है उन्होंने पावरां दे के परमेश्वर भेजदा है। चौथे पातशाह जी गुरु रामदास महाराज ने बहुत सुंदर पवित्र बचन लिखिया है, हर जुग जुग भगत उपाया, बैज रखदा आया राम राजे। तरनाक्ष दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। कंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम दिओ मुख लाया। जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत लए छुड़ाया। भगतां नूं पैदा भी कीता, भगतां दी पैज भी रखी। भावें भगतां कोल सारे पदार्थ सन, पर उन्होंने पदार्थां नूं ग्रहण नहीं किया। पदार्थ तां अगे पिछे तुरे फिरदे सी। कबीर साहब जी ने खद्दर बुनिया, भगत रविदास जी ने जुत्तियां गंढियां, नामदेव जी ने चंदे छापे आ। सारियां भगतां ने अपना कार विहार करके संसार के लोगों नूं दस्सिया। ये धार्मिक पक्ष में तुसीं किसी मंजिल ते पहुँचना है, ये नहीं कई बंदे धार्मिक पक्ष में भी आगू हुंदे आ ते गलत कामां विच भी मोहरी हुंदे आ। भगतां ने कहा अगर तुसीं धार्मिक पक्ष विच तरक्की करनी है तो फिर अपनी किरत करके खाओ, थोड़ी मनबिरती शुद्ध रहेगी। अगर तुसीं किसी का कीता खाओगे तो मनबिरती शुद्ध नहीं रहिंदी। अपना अपना कार विहार किया। गुरु नानक साहब जी ने खेती की है, हट्टी भी की है। ते पंजवें पातशाह ने शुरू ही इत्थों किया, किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम। कहते किरत करके बिछड़े हैं, जे किरत माड़ी सी खा ली तो जीव हिरदे ते असर कर गई। जे किरत माड़ी सी हिरदे ते असर कर गई, हिरदे की बिरती मलीन हो गई, वो फिर कर्म गलत करन लग गया। जदों कर्म गलत करन लग गया फिर मनुख तो पाड़ा पैंदा ही चले गया, पाड़ा पैंदा ही चले गया। इनू समझाउण वास्ते साधु महात्मा भेजे। साधु महात्मा समय समय अनुसार आउंदे रहे, पावरां लैके निरंकार जी का भजन भी किया, निरंकार जी नूं चेते किया। निरंकार जी नाल प्यार करन दी रीति लोकां नूं समझाई कि रब नाल प्रेम करोगे, रब तुहाडे नाल करूगा। बाकी दुनिया की एक अंगी प्रीति है। गुरमुखो भावें तुसीं थोड़े ही हो, थोड़ा चिर बैठ लियो। सुनियारियां दी दुकान ते गाहक थोड़े हुंदे आ, पर उन्हां को धन ज़्यादा हुंदा। धार्मिक पक्ष विच अजकल जिहड़े बह के गुरु की गल सुणदे आ, उन्हां दे पुन्न वड्डे हुंदे आ। पैसे करके भावें उन्हां कोल थोड़े ही होण, थोड़ा सुन लिया करो गुरु की गल। जिहड़े गुरमुख प्यारे रब नाल प्रेम करते हैं, दो पक्ष है सारे संसार दे, ते जिहड़ा गुरु दा दो पक्ष है, बाकी संसार दा सारे दा एक पक्ष है। कई बारी पुत पे लई तड़फदा हुंदा, पिता नहीं परवाह करदा ਉਹਦੀ। कई बार दूजा ब्याह कराया हुंदा ਉਹਨੇ। कई बारी पे तड़फदा, पुत नहीं पुछदा, एक पासे का प्यार है। कई बारी तीवीं आदमी है, दोहां का आनंद कारज होया हुंदा, बनदी नहीं है, एक अंगी प्रीति है। उन्हां च एक करदा है, दूजा नहीं करदा, एक च तां गलती हुंदी है। इस तरह संसार की सारी एक अंगी प्रीति है। जो संसारक पक्ष आ जाऊगा तो एक अंग रह जाऊगा, जो दो पक्ष
परमेश्वर आ जाऊगा, दो पक्ष आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर मच्छी पानी तो बिना रह नहीं सकती, ज्यों मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावै। मच्छी पानी तो बिना रह नहीं सकती। मच्छी नूं पानी तो कढ़ के बाहर सिट दिओ, मच्छी तड़फदी है, तड़फदी है, मैनूं पानी विच पा दिओ, मैं पानी नूं मिलना। पानी नहीं तड़फदा, कोले ही पानी चलदा, भावें एक गिठ दी बिथ ते पानी होवे, पानी तड़फदा नहीं कि मेरी खातर जान दे रही है, मैं भी जाके उन्होंने मिल लवां। पतंगा है, पतंगे की प्रीति है लाइट दे नाल, पतंगे नूं लाइट तो परे कर दिओ, पतंगा तड़फ तड़फ के जान दे दिंदा, लाइट नहीं तड़फदी, मेरी खातर तड़फदा है। भौरा है, भौरे की फुल्लां नाल प्रीति है, सुगंधी लैंदा, भौरे नूं परे कर दिओ फुल्लां तो, तड़फदा है मिलने वास्ते, फुल नहीं तड़फदे कि साडी खातर तड़फदा है। इस तरह गुरमुखो रब परमेश्वर निरंकार जिहड़ा सर्व व्यापक है, हरेक जगह ते तुहाडे नाल ही बैठा है। वो वखरी गल है, सानू विश्वास होवे जां ना होवे, वो वखरी गल है। गुरबाणी ने गल लिखी है, घट घट मैं हर जू वसै, संतन कहिओ पुकार। संतां ने पुकार के गल कहती, हरेक जीव च परमेश्वर बसदा। जे तू रब की प्राप्ति करनी, किसी का दिल ना दुखी करी। जे एक दिल दुखी हो गया, रब दुखी हो जाना, हरेक दे विच तां वो बैठा। तां जिहड़ी परमेश्वर की दो अंगी प्रीति आ, जे सिख परमेश्वर नूं मिलण वास्ते तड़फदा है, गुरु वो तो करोड़ ज़्यादा, करोड़ गुणा ज़्यादा तड़फदा। तुसीं एक कदम तुरो, भाई गुरदास जी ने लिखिया है, चरण सरन गुर सिख एक पैंडा जाए चल, कोट पैंडा आगे होए सतगुरु लेत है। सुदामे का किन्ने मीलों का सफ़र भगवान कृष्ण महाराज ने दिनां च ही कराता, दिनां च ही। भगतां दे नाल ही है, चोज करदा है भगतां नाल, भगतां दी सार लैंदा है। उन्हां परमेश्वर नाल प्रेम करन वाले गुरमुखां नूं भगतां ने आके प्रेरिया, भाई तुसीं भी आह काम करिया करो, जिहनूं सुख मिल जाण। कई जिहड़े चंगे बंदे हुंदे आ, पिंडां विच ने दाने बंदे हुंदे आ, तुहाडे पिंडां च भी बहुत होणगे, नहीं भी दुनिया मुक्के गई किते। वो ये समझदे आ जिहड़ा असीं सुख लै रहे, मेरे पिंड दे लोक भी लै लैण, जिद्दां मैं सुखी हाँ मेरे पिंड दे लोग भी सुखी हो जाण। जिहड़े संत महात्मा वो कहंदे असीं सुखी हाँ, जिहड़े मेरे कोल आउंदे सारे सुखी हो जाण। वो फिर कोल आउण वालियां नूं समझाउंदे आ, इह काम करिया करो। जदों शरीर विच कोई व्याधि आ जावे ते शरीर नूं भुख लगणों हट जांदी आ, प्यास लगणों हट जांदी है, जां वध जांदी प्यास जां घट जांदी है। शरीर तंदुरुस्त होवे, प्यास भी वधिया लगदी है, भुख भी वधिया लगदी है। दो चीज़ां दा समेल है, एक शरीर है, एक आत्मा है विच। भुख आत्मा नूं भी लगदी है ते भुख शरीर नूं भी लगदी है। कई बंदे कहंदे नीत बहुत माड़ी है, अंदरों बहुत भुखा है, इहदे कोल होर दा समान हैगा। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੀ आत्मा भुखी है, भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पा। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ आत्मा नहीं रज्जी हुई, शरीर तो रज्जा होया, पदार्थ तो ਇਹਦੇ ਕੋਲ बहुत है, पर ਇਹ अंदरों नीत ਇਹਦੀ बहुत माड़ी है, अंदरों नहीं रज्जा होया। दो पक्ष ने, जे शरीर नूं शरीर विच नुक्स है, बुखार है, जां कोई भाई होर शरीर विच कोई गर्मी बाई वगैरह वध गई, कफ पित्त वगैरह वध गया, तो भुख भी लगणों घट वध जाती है, तो प्यास भी लगणों घट वध जाती है। जदों फिर आत्मा की भुख प्यास घटती है ना, फिर समझ लो आत्मा बीमार हो जाती है। जदों शरीर नूं भुख प्यास घट लगती है तो ये बीमार हो जाता। ये शरीर की फिर रब के दर्शनां की प्यास खत्म हो जाती है जी।
नाम की भुख लगनों हट जाती। जदों भोजन चंगा ही ना लगे, दूजियां ने भावें स्वाद लगता होवे तो बीमार बंदे नूं स्वाद नहीं लगता। जिन्ने मर्जी स्वादले भोजन रख दो, बुखार होया होवे, मूँह कौड़ा हो जाता, उन्होंने नहीं स्वाद लगता, बाकियां नूं लगता, क्योंकि उहदे विच नुक्स पै गया। उहदे विच नुक्स पै गया तो वह फिर उन्होंने स्वाद नहीं चीज़ लगती। इदां ही जिहड़ी आत्मा की भुख है, ये अंदर फिर रब दे मिलने की प्यास खत्म हो जाती है। जदों आत्मा दे विच नुक्स पै जाता, जदों ये किसी का कीती हुई किरत खांदा तो फिर आत्मा च नुक्स खड़ा हो जाता। इनू फिर दर्शन प्यासी दिन सरात, वो चेता भुल जाता, मैं काम किहड़े आया सी, मैं करना किहड़ा सी, मैनू यह काम करना चाहिए सी, मैं वो कीता नहीं, क्योंकि जब भुखे ही नहीं लगती तो फिर जाना भी किधर नूं सी। गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया, सब नालों मिठी चीज़ एक नाम है, सब तो मिठी। बाबे फरीद साहब जी ने लिखिया, सारिया मिठिया चीज़ों का जिक्र किया। शक्कर विच भी शुगर आ, शक्कर, खंड, नवात, मिश्री, गुड़, माखियो, शहद, माझा दुध। मझ के दुध में शुगर दसी है बाबा फरीद साहब जी ने। कहते सारिया चीज़ां मिठियां, तुसीं मूँह ते रख के देखो, सारिया मिठियां। फरीदा शक्कर, खंड, नबात, गुड़, माखियों, माझा दुध, सभे वस्तु मिठियां, रब ना पूजन तुद। पर महाराज थोड़े नाम के बराबर पुजदियां नहीं है। 12-12 बरस बाद बाबा जी आए अपनी माता दे कोल। माता भी धन आ, जिहड़े अपने पुत्तां नूं तोड़ के 12-12 साल पिछा मुड़ के देखना ही नहीं कित्थे चले गया पुत्त, पत्ते खांदा सी। 12-12 साल मुड़ना, जदों आउणा ते परख करनी माँ ने। माँ भी धार्मिक पक्ष विच प्रवीण सी। माँ धार्मिक पक्ष विच प्रवीण करके ही पुत्त नूं सिरे चाढ़ दिता। माँ काबल सी, अपने पुत्त नूं, उहदी माँ नूं दुनिया याद करदी। फिर बाबे फरीद ने यही गल लिखिया, तिन धन जणे दी माँ आए सफल से। 12 साल बाद आउणा, मोरे सारियां चीज़ां रखणियां, बाबा फरीद साहब जी ने छक लैणियां। बहुत मिठियां पुत्त, चंगियां, बहुत मिठियां माता जी, बहुत स्वाद आ, क्योंकि बहुत देर बाद खाधियां, 12 साल बाद। उत्थे किहड़ा कोई माँ रोटियां लैके बैठी सी। जंगलों में जाके तपस्या करनियां सौखियां नहीं। धरू 5 साल का चले गया सी, 5 साल का बच्चा भेजो तो मैं तो नहीं जानता जंगल में, मैनू कोई कहे जंगल में चल जा। एक 5 साल के मुंडे, ना कोई मोरे माँ बैठी है, ना कोई घर आ, ना कोई कपड़ा, ना कोई होर चीज़, उत्थे चले गया 5 साल का मुंडा। अज दुनिया उन्होंने चेते करती है, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, रूप प्रहलाद जपियो हर जैसे। या 36 बरसां बाद बाबा जी मुड़ के आए। 36 बरसां तो बाद जो महापुरुषों का संग होया, महापुरुषों की संगत हुई, फिर वो नाम ऐसा मिठा लग्या। फिर माता जी नूं गल कही, माता जी रब दे नाम दे बराबर नहीं है। ठीक है मिठियां ने चीज़ां, दूजियां मिठियां खाई जाओ, जी अक जांदा। तुसीं सारी दिहाड़ी मठियाई नहीं खा सकते, सारी दिहाड़ी शहद नहीं खा सकते, सारी दिहाड़ी खंड नहीं खा सकते। रब दे नाम नूं जिन्हां ने मिठा लग्या वो छड्डदे ही नहीं है। पंजवें पातशाह जी महाराज ने बहुत सुंदर बचन सुखमनी साहिब विच उचारे आ। सहज ना किते किते पढ़िया करो, बड़ा आनंद आउंदा। ਉਹਦਾ अर्थ किते समझ के पढ़ लिया करो, बड़ी आनंद की बाणी है। इनू संत महाराज हरख वालिए जिहड़ी अमर कथा शिव जी ने पार्वती नूं सुणाई सी, कहंदे वो अमर कथा है। ये किते सहज ना पढ़ लिया करो, किते अर्थां समेत। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु जी ने लिखिया, संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। जिन्हों ने मिठा लग्या उन्हें फिर छड्डिया नहीं, सारी सारी जिंदगी लगे ही रहे, भोरियां च बढ़ गए। होर भुख लगी नहीं, साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख। जिन्होंने नाम की भुख लग गई, संसार दीयां भुखां ही खत्म हो गई। कोई दुनियावी पदार्थां की भुख, पैसे की भुख, प्रभता की भुख, मान वडियाई की, सारा कुछ सारी ये तो थल्ले ही रह गई।
जिन्हां महापुरुषां दे अस्थान ते तुसीं बैठे हो, जिन्हां दे हुक्म नाल ही बनिया है। बड़ी महान हस्ती इसे ही नगर दे सानू समा नहीं मिलिया उन्हां दा जन्म दिन मनाया करांगे जे किते शरीर चंगा रह गया। एक एडी अमीर घर दे विच पैदा हो के सारी जिंदगी बरकती च नगा देनी, ते नाम मिठा लग्या होऊगा तो सारी जिंदगी बरकती च नगा गए। कशहरा भी लाता, किसी चीज़ की इच्छा नहीं, दुनिया की शर्म हया सब कुछ एक पासे रख दी, और दुनिया के लोग उत्थे नंगे शरीर में जा मत्था टेकते सी। और देखो जिन्होंने नाम मिठा लग्या अज दुनिया उन्होंने चेते करती है। इस स्थान का आप नींह पत्थर रखण आए सी, मैनू एको बार सद्या उन्होंने। महापुरुषों की कला है गुरमुखो, जिन्होंने नहीं मिले महापुरुष वो वखरी गल है, उन्होंने पता ही नहीं उस गल का हुंदी की आ। मैं सौण महीने की कथा करके पिछले पासे बैठिया तो उत्थों एक सुनेहा दे के बंदे नूं भेजिया। उन्होंने पता सी आउण वाला भविख कि जिहड़े मैं अस्थान बनाए आ बाद विच कौन सांभूगा। सारा आउण वाला जाणदे महापुरुष 10-10 हज़ार साल पहले रमैन लिख देनी। मैं फिर उत्थों ही सीधा चले गया, उत्थे भोगपुर अंदर चले गया। अजकल सौण महीने दे विच भट्ठियां ते घे रख के ते गर्म कर करके उन्हां दे मालिश करदे सी। उच्ची उच्ची गाउण लग पे खुशी दे विच। साडा बसीमा सी नाले पिंड साडा लगेरी आ, साडे बजुर्गां नूं जाणदे सी, उन्हां दे बचन करन लग गए। बचन करके फिर मैनू 6 रुपये दिते कढ़ के, अपनी झोली जोड़ी गुथली जे सी उन्होंने नाला बन्निया सी, उन्होंने आपे ही हत्थां नाल खोलिया, खाखी जी गुथली सी, विचों 3 नोट 2-2 दे कढ़े। मैं 3 नोट लैके जेब च पा लए, आग्या लैके मैं वापस आ गया। मुड़ के दोबारा मैं गया, सेवादारां ने अंदर नहीं मैनू वड़न दिता। इक्को वारी दर्शन होए जिंदगी च। गुरमुखो दुनिया गल्लां करदी आ, वो 6 रुपये मेरे कोल हाले पए आ, करोड़ां रुपया साडे हत्थ विच दी लंघ गया, सानू नहीं पता लग्या कित्थों आया। महापुरुष की दृष्टि आ, जिन्होंने नाम मिठा लग गया जो मर्जी दे देन उन्हां को सारा भंडारा। जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता। सारे थोक दियां चाबियां गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे उन्होंने फड़ातियां हैं। जिन्हें अपने परमेश्वर नूं पहचान कर ली है, जिन्हें अपने आप नूं पछाण लिया, गल तां पछाणने दी है अपने आप नूं। ये बंदा अपने आप नूं नहीं जानदा। संत महाराज जी हरखो वालिए एक बारी संत बाबा गुरबचन सिंह जी पिंडरां वालियां नाल बहुत प्रेम सी। एक बारी वो आए हुए सन ते बचन चलदे सन, बचना दे विच फिर उन्होंने एक बचन कीता। कहण लगे महाराज जदों कोई तुहाडे सामने आउंदा तुसीं ओहदी गल पहले कह दिंदे आ, तुसीं ओहनूं कहण दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੀ नहीं पे वो कह देवे, तुसीं पहले ही कह दिंदे, ਉਹਨੂੰ कहण ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ नहीं पैंदी। तुसीं आउंदे बंदे दी गल दिल दी पहले किदां जाण लैंदे। बहुत सहज नाल बचन करदे हुंदे सी। मैं अपने बजुर्गां तो सुनिया, जिन्हां ने दर्शन कीते होणगे जरूर जानते होणगे। सहज नाल बचन भी इन्ना भी अगले नूं शांत कर देना मोहरे वाले नूं। एक बचन फिर किया, कहते ज्ञानी जी सारी सृष्टि विच कीड़ी तो लैके हाथी तक जो स्थूल है, जो जंगम, जो चलता है, सारी सृष्टि चाहे खड़ी है, चाहे टाने, चाहे जीव जंतु तुरदे फिरदे ने, किसी जगह तो परमेश्वर तो बांझी तो नहीं है। एक जगह तो परमेश्वर हैगा भी कल्ला ही। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियों जिन कीती सो पार पिया। तू सच्चा साहिब से जिन कीती को नानक करते कियां बातां जो कुछ करना सो कर रहे। रह रास जी दे विच आउंदा दुख दारू सुख रोग पिया जा सुख ताम ना होई। तू करता करुणा मैं नाही जाहों करी ना होई।
बलिहारी कुदरत बसिया तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ। जात मैं जोत जोत मैं जाता अकल कला भरपूर रहा। इत्थे उपर अध कला के पढ़िया करो, अकल कला नहीं है, इहदा अर्थ नहीं बनूगा। अकल कला सारी सृष्टि विच कला ही है, भरपूर उहदे बराबर कोई दुनिया ताकत दूजी नहीं है। एको ही है कला सारी सृष्टि विच, एक ओंकार। वो तो पहला कुछ भी नहीं सी, कला ही है। अकल कला कोलों अधक लगूगा इहदे विच। जिहड़े कहंदे नहीं लगना वो भी लाउंदे आ, जदों पढ़दे आ जिनी नाम ते आया गए मसक्कत काल, कोलों अधक ला के मसक्कत बनदा, नहीं तो मस्कत बनूगा वो। ते कहण लगे ज्ञानी जी सारियां जीव आत्मा तो इक्को ही आ। कहण लगे हाँ जी। कहंदे जिहड़ा अपने आप नूं पछाण गया सारियां नूं ही पछाण गया। गल अपने पछाणन दी है। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन हर चीज़ तेरे नाल है, गुरमती रंग मान। परमेश्वर तेरे नाल है, तू उहनूं पछाण, तेरे नाल ही तो हैगा। दूर कित्थे नूं जाना तू? दूर जिहड़े जंगलां नूं जांदे वो भी जरूरी आ। ये ना मत भुलेखा किसी नूं जी बाबा फरीद साहब ने कहा जंगलां च रब नहीं है। कईयां नूं भुलेखा भी जंगलां च भोरे पट्टण च रब नहीं है, जंगलां च रब नहीं। वो गुरमुखो यूनीवर्सिटियां स्कूल न्याणे पढ़ते हैं, वो शाम नूं जंगलां चल जाते पढ़न, शाम नूं खेतां च एकांत भालते हैं। जिन्हें शब्द ना जुड़ना एकांत तो भालनी है। फरीद साहब ने लिखा फरीदा जंगल जंगल क्या पवे बन कंडा मोड़े, बसी रब हियालिया जंगल क्या ढूंढे। कहते रब तेरे अंदर बैठा, पर कहते जंगल में जाके एक तो अखां देखण तो रह गईयां, किसी नूं देखिया नहीं है। अखां चुप कर गईयां, अखां खड़ गईयां। जदों अखां ने किसी नूं देखिया नहीं, मूँह बंद हो गया। मूँह ने गल कहना करनी सी भी जब बंदा ही है नहीं सी उत्थे कोई भी। जब बंदा है नहीं सी तो उहदी गल भी कित्थों सुननी सी, कन्न भी खड़ गए। निंदिया चुगली खड़ गई, तो होर दुनिया दीयां संसारी गल्लां खड़ गईयां। एक फिर मन रह गया, मन इधर उधर घुमदा सी, मन नूं शब्द नाल जोड़ दिता। जदों उत्थे सिरे ते पढ़ाई पहुँच गई, फिर जिथे मर्जी बैठा रहे हो। भगतां नूं संसार विच भेजिया, संसार दे लोकां नूं उपदेश देवो, भाई यह काम करिया करो जे तुसीं रब दे नेड़े होना। भगतां ने दसिया जे तुहाडे सिर आत्मा रब नूं, तुहानूं रब दा नाम मिठा नहीं लगदा, जां तुहाडी कमाई 'च फर्क होना, जां तुहाडे कर्म विच फर्क होना, जां तुसीं किसी दी निंदिया करदे होणे, जां किसी नाल बैर भावना माड़ा भाव किसी नाल रखदे होणे। बहुत औगण लिखे है गुरु ग्रंथ साहिब विच। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भात कर, न हर हर पीजै राम राजे। कोई रागी गाई जावे, राग नाद गाने वाले, कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भात करना, हर हर पीजै राम राजे। जिन्हां अंतर कपट बेकार है तिन्हां रोए क्या कीजे। अंदरों कपटा ना भरिया होवे, रो रो के संगत नूं दसी जावे स्टेज ते, कहंदे की करूगा रो के, हर करता सब कुछ जानदा, अंदर ही बैठा हो। सिर रोग हथ लीजै, सिर रोग हथ दीजै, जन नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है, हर भगत हर लीजै। जिन्हां दे हिरदे शुद्ध सी, वो भगतां दी गिणती विच लै लए। ना अंदर बैर भावना सी, ना किसी दी निंदिया, ना चुगली। आ तां निंदिया चुगली चली जांदी, रोज़ टैलीविजन देख लो, फोना फोना ते। इन्हां चीज़ां तो उत्ते उठ के भगतां दे मगर लगना पैंदा। भगतां दे मगर भी उन्हां मांगर तुरना पऊगा। उन्होंने चाल ना चाल नराउणी पऊगी। जे उन्होंने पैर च पैर रखोगे तो पहुँचोगे, जे बखरा का पैर कट जाओगे तो फिर नहीं कभी भी। मेरी उम्र के जोड़े तुहाडे च बैठे आ, वो जानते जदों गड्ढा लीहां विच हुंदा सी, बरसात हो जाती सी, गड्ढे लीहां च लंघ जाते। बाण होवे, खेत वाया होवे, मक्की का गड्ढा विच दी ले आईए, जिहड़ा पहला नगाउंदा उहनूं बहुत तंगी हुंदी। मगर वाले गड्ढे लीहां च पा लो, बड़े सौखे बाहर निकल जाते। जिहड़ियां लीहां महात्मा लोग बना गए, उन्हां लीहां च गड्ढा पा लीए, आपे सिरे ते लग जूगा। जिद्दां जिद्दां महात्मा तुरे, उद्दां उद्दां उन्हां दे मगर तुरदे चले जाए। उन्हां विचों एक शख्सियत
संत बाबा प्रीतम सिंह जी, संत बाबा महेंद्र सिंह जी जलंधर वाले, उन्हां दे चरनां विच रह के ड्राइवरी की। उस तो बाद बाबा रणजीत सिंह जी भोगपाल वालियां दे हुक्म के अनुसार 100 रुपया उन्होंने दिता सी। कहंदे प्रीतम सिंह गुरुद्वारा बना, एक कहंदे सरोवर बना, उत्थे लोकां दे दुख रोग दूर होणगे। एक शहीद कहंदे पालदी दा ही आ, बहुत चंगा शहीद आ, लोकां दे घरीं जाके काम करिया करूगा। कहंदे एक वो स्थान बना। बाबा प्रीतम सिंह ने फिर स्थान एक ਸਿੰਘਪੁਰ बनाया लंगर लाउण वास्ते, एक 100 रुपये दे नाल। और लम्मा टाइम उन्होंने इत्थे काफ़ी संगत जोड़ी। बहुत प्रेम वाली रूह सी, जिन्हां ने प्रेम किया अज भी रोंदे आ। वो बड़ा लम्मा टाइम सेवा की संगतां दी, बरकती विच रह के पैसा जमा नहीं किया। जिहड़े पैसे वध जांदे सी मैनूं दे आउंदे सी। आप भी इत्थे पैसे जिद्दां आई गए उद्दां ही लाई गए। अंदर मैं देखिया तख्त पोश पिया सी, ना उत्ते बिस्तरा सी, कोई इद्दां लम्मे पै जांदे सी। कई बारी माता जी ने बेहियां रोटियां दे देनियां, कहना जे साध बनना सी ताजियां खाणियां सी, साध काहनूं बनना सी। ते बेहियां रोटियां देनियां तो उन्होंने कुछ नहीं कहना, फिर साइडां तोड़ तोड़ के रख देनियां, विचों नरम नरम कढ लैनी ते सख्त सख्त रख देनी, फिर खा ना होनी। दंद नहीं सी बहुता काम करदे, पर कहना नहीं कुछ भी। इस करके कहना नहीं कुछ भी। उही भावना जिहड़ी महापुरुषां दी दरसाईओ जां गुरु दी जीवन दे विच, अपने जीवन दे विच तरक्की करन वाले कानून सन, असूल सन, उन्हां नूं अपनाया। भावें अज समा होर कलयुग दा समा, राजे प्रजा ते अन्नदाता जिहड़ा दुनिया नूं रिजक पहुँचाउंदा है। चेता रखियो, जां तां परमेश्वर सृष्टि नूं पालदा, जां फिर जिमीदार पालदा। जिन्हें दाने पैदा कीते आ, जिमीदार ने पैदा करके दाने मंडी विचों पैसे लै आया। जिहड़े दाने जानवर खा गए वो तो उन्हें कोई पैसा नहीं लिया। जिहड़े दाने कीड़ियां काढ़े धरती 'च खा गए वो तो पैसा उन्हें कोई नहीं लिया। जिहड़े दाने चूहे वगैरह होर जानवर खा गए उन्हें दाना पैसा कोई नहीं लिया जिमीदार ने। ਉਹਦੇ गन्ने भन के लोग चूप गए, कोई पैसा नहीं किसी तो लिया। कोई साग तोड़ के लै गया, पैसा किसी तो नहीं लिया। जिमीदार दाता है। महापुरुष संत बाबा अतर सिंह जी महाराज मस्तू आने वाले बचन करिया करते सन। कहते जिमीदार राजा है राजा, कहते ये हत्थां वल नूं सारी दुनिया देखती है। अज वो जिहड़ा अन्नदाता है सड़कों ते रुलदा, उन्होंने गौरमेंटां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਅੰਨ ਮੰਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੁੱਥੂ ਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੁਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹੋ। दुख सारिਆਂ ਦੇ अंदर है, पर एक साडा ਇਹ मजबूरी है। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ 2 ਅਖੰਡ ਪਾਠ। एक अखंड पाठ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ एक अखंड पाठ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। एक अखंड पाठ उन्होंने, एक अखंड पाठ उन्होंने सेवादार बहुत ज़्यादा प्रेम रखने वाले भुपिंदर सिंह पालदी तो, वो भी उन्होंने बहुत प्रेम रखते सी माता जी नाल भी तो बाबा जी नाल भी। वो भी हरेक साल उन्होंने याद में अखंड पाठ कराउंदे आ। होर भी बहुत सारे सेवादार पालदी दे भी आले दुआले नगरां पिंडां दे भी जिहड़े बाबा जी नाल स्नेह रखते सी, वो सारे ही आउंदे आ।
सो अज इस करके भावें ठीक है थोड़ी संगत है, धार्मिक पक्ष के अंदर कोई ना कोई गल ग्रहण कर जाया करो। जो हुक्मनामे सतगुरु जी ने बख्शिश कीते है ਉਹਦੀ थोड़े समय वास्ते विचार करिए। एक गल चेता रखियो, सारे तुसीं सियाणे बैठे हो, नियाणे गोलकां रखते हुंदे सी अगे मिट्टी दियां, कई डब्बे रख लेंदे सी, ਉਹ 'ਚ कोई 10 5 कोई 1 रुपया कोई 98 पाउंदे रहिंदे सी। हौली हौली ਉਹਦਾ फिर भर जानी तो फिर नियाणिਆਂ ने कढ़ लैणे पैसे। इदां ये भी सवास ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ धार्मिक पक्ष ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓਗੇ ना, समझ लो गोलक ਵਿੱਚੇ पै गए। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, गुरु ग्रंथ साहिब जी की गल सुननी है, गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में बैठना, ये थोड़ी एक चित्रगुप्त की मूवी धर्मराजे ने जांदी देख लैनी कित्थे बैठा है। चाहे मन मेरा लग्या चाहे नहीं लग्या, मैं चंगी जगह ते बैठे मूवी बन गई। दूजी एक मेरे कन्ना 'च गल धार्मिक पक्ष गुरु ग्रंथ साहिब जी की पई है, उन्हें सवास सफल ही समझ लो। सो थोड़े समय वास्ते विचार करनी है। सोरठ महला 5वां घर दूजा। गुरु अर्जन देव महाराज के पवित्र रसना द्वारा उचारिया होया हुक्मनामा है। जिन्नी क मत बुद्धि महापुरुषों ने दिती है, बख्शी है, मत बुद्धि का तो अंत नहीं कोई भी। मत तो सब तो बड़ी मत परमेश्वर निरंकार कोल है, उन्हें जिन्नी जिन्नी बख्शिश की गहां अपने प्यारियां नूं दिती है, उन्होंने उन्नी उन्नी दिती है जिन्ना जिन्ना भार कोई चकदा सी। 2 किलो वाले 2 किलो, 5 वाले 5, 10 वाले 10। मैनू तो रुलदे फिरदे नूं महापुरुषों ने जिस गद्दी ते बहाल दिता, जिस जगह ते मैनू बहाल दिता, मैं तो कई जन्म भी उन्हां दा लेखा नहीं दे सकता। एक हल बाउंदे बंदे नूं सारा पैसा फड़ा देना, एक हल बाउंदे बंदे नूं मैनू धार्मिक पक्ष दे अंदर गुरु दा ज्ञान बख्श देना संगत नूं देण वास्ते। एक अनपढ़ बंदे नूं बड़ियां बड़ियां स्टेजां दे उत्ते मैनू अपने कन्नी सुनन दा समा मिलिया कि विद्वानां दी लैन विचों मैनू बड़ी उस वेले अपने मन में नमोशी आउंदी आ भी मैनू तो आउंदा कुछ नहीं आ। बड़े बड़े स्टेज सैकटरी मैनू विद्वानां दी लैन विच गिणदे आ। उन्हां महापुरुषां दी बदौलत है। वो कीड़ी तो पातशाही दे देण, उन्हां दी मर्जी है, जिहनूं मर्जी जो मर्जी बना देण। कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सवाह। ये उन्हां दी बदौलत, उन्हां दी रहमत मैनू उन्हां दे परिवार विचों करके कह लो, जां मेरे ते उदां दया करके उन्होंने कह लो। शरीरां दे दुख सुख आउंदे ही रहिंदे आ, कदी आ जांदे कदी हट जांदे, कोई वड्डी गल नहीं हुंदी। संत बाबा दलीप सिंह जी डमेली वाले कहंदे हुंदे सी शरीर नूं 4 दिन चंगा खाण नूं दे दिओ ते शरीर चंगा हो जांदा, 4 दिन शरीर नूं माड़ा मिल जावे खाण नूं तां शरीर माड़ा हो जांदा। कहंदे शरीर चंगा माड़ा होई जावे 100 वारी हो जावे, नीत माड़ी ना होवे। अंदरों आत्मा की रूह जिहड़ी आ वो ना माड़ी होवे, वो पूरी उही होवे जो खानदानियां वाली हुंदी आ। खानदानी बंदियां दे सुभाਅ भावें गरीब हो जाण, भावें उन्हां कोल पैसे ना भी होण, वो अपना सुभाਅ नहीं गवाउंदे। मैनू उन्होंने तुरे फिरदे नूं हल बाहुंदे नूं बलदां नाल हल मैं बाहिया, बहुत मशक्कत करनी पई। फिर मैनू तरस करके उन्होंने यह जगह बख्शी है, तरस करके मैनू स्टेज ते 4 अखर बोलण जोगा बनाया। मैं उन्हां दा धन्नवाद कई जन्मां च जी मैं जे पुठा लट के भी तपस्या करा तो मैं दे नहीं सकता। सो सोरठ राग के अंदर 5वें पातशाह जी महाराज ने ये बचन अपनी पवित्र रसना द्वारा उचारे आ। गुरमुखो जिन्हां दे मन शुद्ध हुंदे, आत्मा शुद्ध हुंदे, उन्होंने बचन चंगे लगते है, क्योंकि जिहड़ा शरीर चंगा है उन्होंने स्वाद लगती है चीज़, जिहड़ा नहीं चंगा उन्होंने नहीं लगती। जरूरी तो नहीं भी धार्मिक पक्ष की या कथा रब की सारिਆਂ ਨੂੰ चंगी लगती होवे,
पर ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਣ ਤੇ ਹਰ ਕਥਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਚੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਕਨੀ ਸੰਸਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਭਰਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾਵੇ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਔਖੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। 98.4 ਗਰਮੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, 99 ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ 97-96 ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। 98.4 ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਗਰਮੀ ਪਾਈ ਆ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਤੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਗ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਦਾ ਤੱਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪੇਟ ਗੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ 98.4 ਗਰਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। 98.4 ਹੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੇ ਗਰਭ 'ਚ ਜਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਤੂੰ ਨਾ ਜਲੇ ਮਨ ਤਨ ਔਰ ਧਾਰ। ਵਿਖਮ ਥਾਨੋ ਜਿਨ ਰੱਖਿਆ ਤਿਸ ਤਿਲ ਨਾ ਬਸਾਰ। ਐਡੀ ਔਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਸਾਰਨਾ ਨਾ ਕਰ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਤਲੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰੇ ਬਸੰਦੋ ਕੋਹਥੜੇ ਥਾਏ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਣੀ ਕਿਉਂ ਬਸਾਰੀਏ ਉਧਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਏ। ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਆ, ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਭਾਈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਰੇ ਭਈਆ ਕੈਸੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੂਲਿਆ ਫੂਲਿਆ। ਜਬ 10 ਮਾਸ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਉਰਦ ਤਪ ਕਰਤਾ ਸੋ ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਭੂਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰ? ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਈ? ਰੇ ਭਈਆ ਕੈਸੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੂਲਿਆ ਫੂਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਬ 10 ਮਾਸ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਉਰਦ ਤਪ ਕਰਤਾ। ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਾ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਕੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਖਸਮ ਬਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਅਲੋਪ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਘੜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਲੋਪ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ। ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ। ਚਲੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। 88,000 ਬਾਲਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 88,000 ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ।
उन्हां विचों 9 नाथ 84 सिद्ध 6 जति 52 वीर, बाकी 88,000 बालक उस टाइम ते पैदा होए। माया अलोप सी, किसी नूं माया नहीं लेप हुई। साडे भी पवित्र स्थान ते संत महाराज जी हरखो वालियां दे परम सेवक सन संत बाबा साहिब सिंह, वो लंगर विच ही रहिंदे हुंदे सन। महाराज कहंदे हुंदे सी बाबा साहिब सिंह दी गड्डी लीह ते आए, माया तो रहत है। महाराज उन्होंने कहते हुंदे सी बाबा जी तुसी साडे दर्शनां नूं ना आया करो, मैं तुहाडे दर्शनां नूं आया करूँगा। वो फिर लंगर 'च ही रहिंदे हुंदे सी। महाराज आप लंगर विच उन्हां दे दर्शनां नूं जाया करदे सन। बहुत सारे पुरख जिन्हां ते किरपा हुण भी माया तो रहत होणगे, ये नहीं गल मुक नहीं जाती दुनिया 'च, बीज नाश नहीं हो जाते। जे बहुत आत सागत पुरुषां दी आ तो ये तो नहीं है भी गुरमुख मुक गए दुनिया 'च। माता दे गर्भ की हालत दसी है गुरु अर्जन देव महाराज ने, मात गर्भ मैं आपन सिमरन, अपना सिमरन तैनूं दिता भाई, उत्थे तेरी रखिया कीती है। पावक सागर था लहर मैं तारो तारन हारे। सागर वैसे पानी का गिणिया, पानी का समुंदर गिणिया सागर। नदी नहर तरनी सौखी है, सागर तरना बहुत औखा। समुंदर का पता ही नहीं जाना किधर नूं, कोई था थोड़ो है, कोई गिणती थोड़ो आ किधरले पासे नूं है। तो कंपास ना हुंदा तां समुंदर में जा ही नहीं सकता सी बंदा। ये अग का समुंदर है, पानी का समुंदर तो चल फिर भी बंदा थोड़ा क बहुता चले जो, अग के समुंदर तो पैर रखिया नाल ही सड़ जाना इन्हें। जिहड़ी माता के गर्भ की अग है तो बाहर संसारक मायक पदार्थां की अग है। ये दोनों का एको ही चीज़ दसी है भी दो एको जिहे है। जिद्दां कहे भी इन्नी गर्मी इहदे विच है तो इन्नी इहदे विच है। संसारक पदार्थ सारे एक पासे इकट्ठे कर लो सुख, दूजे पासे जिहड़ी माता के पेट की गर्मी इकट्ठी कर लो। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे एको ही है, जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया, माया अगन सब एको जेही करते खेल रचाया। कहंदे बाहर माया का भी उही रूप है, ये भी किसी को शांति नहीं है। मत भुलेखा रह जाए मैनू धन मिल जाए मैं सुखी हो जाऊँगा, भुलेखा ना रह जाए। कहंदे उही आगे है। तो सतगुरु जी कहंदे पावक सागर था लहर में, महाराज तुसीं उत्थे ही रख सकते हो। एडी बड़ी ये भी तो बराबर ही है ਉਹਦੇ। पंजवें पातशाह कहते ये भी तो मारा बराबर है ਉਹਦੇ जिद्दां ये है। किरपा करके ਇਹਦੀ लेवे जोड़ दिओ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ सुरती जोड़ दिओ परमेश्वर नाल, आप ही अग तो बच जूगा ये। वो गुरु अमरदास महाराज ने ਉਹਦਾ जवाब दिता। फिर कहते लिव तो जोड़ दिंने आ पर ये नुक्स बहुत है, ये औगण बहुत बड़ा है। गुरु अमरदास महाराज ने एक वचन किया, कहन लगे अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया। जिहदा अंदरों धी पुत भैन भरा जमीन मकान किसी चीज़ नाल मोह नहीं है, वह शब्द सवारिया गया, बाकियां का नहीं सवारिया गया। तो शांत भी उही रहे। बाकी तो जिद्दां माता के पेट में सी उदे उत्थे उन्होंने कोई फर्क नहीं पिया, वो तो बराबर ही रहे। उत्थे बाहर भी वो तपदे ही है, अंदर भी तपदे सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई फर्क नहीं पिया। तो गुरु अर्जन देव महाराज कहते भाई पावक सागर ये महाराज अग का समुंदर है, अथाह लहर में। तुसीं जिन्हां ने समुंदर देखा होना, मैं तो एक बार देखिया, बड़ियां बड़ियां लहरां आउंदियां चक चक के सारा गंद मंद बाहर सिੱਟ दिंदियां। कई बारी जहाज़ां नूं हिला दिंदियां, वो जहाज़ छोट छोटियां बेड़ियां तो खड़ियां कर देंदे, वो फिर नहीं तो हिला दिंदियां बड़ियां बड़ियां लहरां। जिहड़ियां बड़ियां लहरां समुंदर विच भव सागर दे विच इदां लहरां चलदियां। पंजवें पातशाह कहंदे आ लहरां ही संसार विच हेरा फेरियां, झूठ बोल बराला, पैसे इकट्ठे कर लो, हेरा फेरी करके एक बंदियां नूं मार के किसे दे अंग कढ के, ये लहरां नहीं तो होर की है। जिहड़ा हेरा फेरियां दे पैसे उन्हां दी औलाद देख लिओ की करदी है, उन्हां दा उस तरह उन्हां नूं सुखी नहीं वो भी बंदे होणगे।
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਰਾਂ। ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ। ਅਥਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥਾਹ ਬੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਰੁਕਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੁੱਟਿਆ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ। ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨਿਰਗ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਨਿਰਗ 1 ਲੱਖ ਗਊ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਖੋਲ, ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖੋਲ। 1 ਲੱਖ ਗਊ ਰੋਜ਼ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਊਆਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨੀਲਾ ਲਾਤਾ, ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਲਾਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪੀਲਾ ਲਾਤਾ, ਵੀ ਗਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਲੱਖ ਗਾਂ ਫਿਰ ਗਿਣੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਗਿਣ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਹਰੇ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਆ ਇਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇਰੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਝਗੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹਟਣਾ। ਦੋਏ ਰਾਜੇ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਗੁਨਾਹ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਵੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਵੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਗਊ ਦੋਏ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਲੜੋ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਾफ़ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਮਾफ़ੀ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਨਿਰਗ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਡਾ ਮਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਫਰਾਖ ਦਿਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਆ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਰਾਜੇ ਨਿਰਗ ਨੂੰ ਕਿਰਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਥਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਛਮਣ ਹਾਲੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਖੂਹ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਖੂਹ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਰਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। 21 ਲੱਖ ਸਾਲ ਰਾਜੇ ਨਿਰਗ ਨੇ ਕਿਰਲੇ ਦੀ ਜੂਨ ਭੋਗੀ।
बहुत औखा है बहुत सजाए पिया देश लम्मे, इन कीता तिसे न जानी अंधा तां दुख सहे प्राणियां। इनू कहंदे पावक सागर अथाह लहर मैं, तारो तारनहारे। महाराज तुसी तारन दे समर्थ हो, तुसी दृष्टि करके कृपा करके तार सकते, जीवां दे बस की गल नहीं है। इन्हां जनता के बस किस नाही, तुद वेकी जगत पाया। एक नानू तू मेल लै, एक आपूं तुद खवाया। गुर कृपा ते जाने जिथे तो ताप बजाया, सहजे ही सच समाया। बेनतियां करया करो महाराज, तार लो जी बख्श लो जी। महाराज साडे बस की गल नहीं है, इदां बेनती करया करो गुरु नानक दे चरनां च आके। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे। महाराज समुंदर दे पानी की गिणती नहीं तो मेरे औगणा की गिणती नहीं है। दया करो किश मेहर पावो, डुबदे पत्थर तारे। तुसीं डुबदे पत्थर तारते महाराज, तुसीं महाराज तुसीं डुबदे पत्थर तारते, तुसीं सानू भी नहीं तार सकते हो, सानू नहीं तार सकते। निजामुद्दीन औलिया एक होए है दिल्ली दे विच, उन्हां दा स्थान हुण भी बनिया होया, बड़ी मानता है। अमीर खुसरो उन्हां दा सेवक सी, वो दुकानदारी करते सन। नियाणियां ने की करना, खोटे पैसे लभ लभ के निजामुद्दीन औलिया जी नूं दे जाने, तो उन्होंने खोटा पैसा देख के सौदा वह पूरा ही दे देना, वो एक होर भांडे च पा लेना। लोगों ने नियाणियां ने लभ लभ के खोटे पैसे लियाने, तो उन्होंने भाई बाबा पैसे दे, पैसे का समान दे देना। उन्हें ही करना, खोटा पैसा दे के समान पूरा ही दे देना, एक होर भांडे च पा लेना, खरा एक होर भांडे च पा लेना। पाउंदे रहे लोग, लिया लिया के खोटे पैसे दिंदे रहे। जिदन शरीर छड्डण लगे अंदर नूं गए, अपना वो खोटे पैसों वाला भांडा चक लिया, मोहरे इदा भांडा रख के खोटे पैसों वाला उपर नूं निगाह दृष्टि करके इदा हथ करके कहन लगे, ऐ खुदा मैं इन्ने खोटे रखे आ, तू मैनू एक नूं नहीं रख सकदा। मैं भी तो खोटियां दा सौदा दिता ही आ, मैं इन्ने खोटियां दा सौदा देता, तू मैनू एक खोटे नूं नहीं रख सकदा। इदां बेनती करिया करो। ये महापुरुषां ने भगतां ने सानू बेनती करनी दसी है। पावक सागर अथाह लहर में ये बेनती करनी दसी है, नीवें हो के करिया करो। महाराज असीं तां औगणां दे भरे होए हां, तुहाडी किरपा तो बिना जीव तर नहीं सकदा। माधो तू ठाकर सिर मोरा, सिर मोरा हुंदा श्रोमणी, श्रोमणी सब तो उत्ते, तेरे तो उत्ते दुनिया च कोई नहीं है, तेरे तो उत्ते दुनिया च कोई नहीं। राम जी महाराज जब जंग जित लिया युद्धिया लंका का, सब सेवादारां नूं सरोपे दे दे के तोरन लग गए, सत्कार किया सारियां दा। जिन्हें जिन्हें सेवा वध की बड़ा सत्कार किया, प्यार किया। सारियां तो बाद बारी नील ते नल दी आई, जेड़े पत्थर जोड़ जोड़ के रखते हुंदे सी समुद्र ते। इन्हां नूं श्राप सी महात्मा दा, वो श्राप करके पत्थर जोड़ जोड़ के रखी गए। जेड़ा पत्थर रखते सी डुबदा नहीं सी। राम जी महाराज दे नाम हनुमान लिख के, राम राम लिख के पत्थरां ते वो सारे पत्थर तर गए। जदों उन्हां दी बारी आई, महाराज नील ते नल नूं कहण लगे, भाई तुसीं भी साडी बहुत मदद कीती है, तुसीं भी साडी बहुत मदद कीती, तुहानूं की दईए? कहंदे महाराज असीं मदद की करनी सी जी तुहाडी, ये जीव की कर सकदा, तू ही कृपा करके सेवा करा लवें। जिहदे ते कृपा करदा तू हथ रखदा सेवा करदा, दूजा करदा ही नहीं है। ये तुहाडी दृष्टि, तुसीं कृपा कीती सातों सेवा कराई है, असीं की करना सी? ਜਿਹੜੇ पत्थर ते तुहाडा नां लिखिया पत्थर तर गया, असीं तो जोड़ जोड़ के रखते रहे। सानू उत्थे साडे जे कुछ हुंदा तो पहला ना कर दिंदे कुछ। राम जी महाराज ने एक पत्थर चक्या, उहदे ते राम लिख के पत्थर चक के समुंदर सिड़ता, पत्थर जांदा ही डुब गया। महाराज कहंदे भाई आ नहीं तरिया, आ देखो तुसीं कहने राम लिख के पत्थर तर गया, आ तां नहीं तरिया।
तो नील उठ के बोलिया, कहता महाराज इन्हें नहीं तरना सी, इन्हें नहीं तरना सी। कहते तर तो वह भी नहीं, जो तरदा तो वह भी नहीं जो थोड़े हिरदे तो गिर गया, ये जो तुसीं चक के हथ ना मारिया इन्हें कित्थों तर जाना सी। थोड़ी रहमत तो बिना जीव तर नहीं सकता, थोड़ी कृपा तो बिना जीव तर नहीं सकता। तू ठाकर सिर मोरा, तुसी श्रोमणी हो महाराज, थोड़ा तो बड़ा कोई नहीं। इहाँ उहाँ तुहारो तोरा, इत्थे भी तुहाडा ही आसरा ते मोरे भी तुहाडा ही आसरा। जे कोई बंदा कहे इत्थे होर है गाहां होर है, साध के संग इहाँ उहाँ सुहेला। जिहड़े ओहदे वर्गे आ वो भी इत्थे सहायक है, गाहां भी सहायक है। संत महाराज जी बचन करते हुंदे सी। कई बारी एक बार किसी ने कहा महाराज संत मर के भी संभाल कर सकता जीवां दी। कहते संत जी जे मर के संत संभाल ना करे फिर जीव ही होया, फिर ब्रह्म ना होया। जिहड़ा ब्रह्म है मरदा नहीं कदी भी, जदों याद करो हाजिर है। वखरी गल आनियां नूं नहीं दीदा, दृष्टि वाले गुरमुखां नूं दिसदा। उन्होंने हर वेले अंग संग तां ही डरते रहंदे आ, मेरे कोल खड़ा। जिहड़े ये नहीं समझते मेरे कोल खड़ा वो डरते नहीं है, इन्ना ही फर्क है। इहाँ उहाँ तुहारो तोरा। महाराज साडी बिरती इदां दी है। पंजवें पातशाह कहंदे मोरे होर बचन कीता, कीते को मेर समाने। महाराज साडी बिरती इदां दी, माड़ा जिहा असीं कर दिंदे तां अपने आप नूं पहाड़ जिड्डा समझदे हैं। पक्खा लवाउणा गुरुद्वारे सारे टब्बर दे नाम लिखा देने, होर कोई काम करना साडा पता लग जाए लोकां नूं इन्हें आ दान किया, इहनूं कहंदे पहा। बाकी जिहड़ा उहने दिता उहदी नहीं गिणती करदे, जो कुछ उहने देता उहदी गिणती कोई नहीं। मैं जे लम्मा हिसाब करां तां बहुत लम्मा हो जूगा ये, उहदा जो कुछ दिता आ। गुरु अर्जन देव महाराज दी पढ़ लो निर्गुणी आरे आणिया, सो प्रभ सदा समाल। सारी अष्टपदी पढ़ लिओ। कहंदे महाराज कीते को मेर समाने। असी साडा ये महाराज साडा सुभाਅ आ, माड़ी जी गल करते हैं तो बड़ा बना के दसदे फलाने ने सेवा की है। संत महाराज एक बार बैठे सी, किसी ने कहा जी आप माया सेवा करनी है स्पीकर ते बोल दिओ। महाराज कहते स्पीकर च बोलनी, दरगाह च नहीं बोलना। फिर जे दरगाह च बुलाना इत्थे चुप करके जिहड़ा दाना थले धरती बीज दईए, थले दब दईए मिट्टी च उही जमदा, जिहड़ा बाहर कढ के सिट दईए जानवर चुग जांदे आ। जे लोड़े चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाइए। जे अपना भला चाहुंदा पुन्न करके नीमा सदावे अपने आप नूं। मैं तो कुछ नहीं कर सकता महाराज, तू ही करवा रहा, तेरा ही सारा कुछ है। ये महाराज साडी बिरती है। पंजवें पातशाह कहंदे कीते को मेर समाने। मेर कहंदे पहाड़ नूं, करनहार तृण जाने। महाराज तैनूं असीं तिणके समान समझदे हैं। तू सानू सारा कुछ ही दिता, पहलां तो लैके गर्भ तो लैके अखीर तक। महाराज तेरी तो गिणती कोई नहीं है। असीं समझदे तैनूं तिणके समान साडी बिरती बनी हुई है। तू दाता मांगण को सगली दान दे दान दे प्रभाने। महाराज तू दाता है सारी सृष्टि का, सारी सृष्टि तेरे दात मंगते है। जगत पखारी फिरत है सबको दाता राम। महाराज तेरे तो बड़ा कोई नहीं है, तू संसार का देनहार है। सारी सृष्टि नूं रिजक तू दे रहा, सारी सृष्टि नूं तू पाल रहा। तू दाता मांगण को सगली, सारे राजे महाराजे तेरे मंगते है, सारी दुनिया तेरे मंगते है। सब तुदे पासों मंगदे ते तू ही मंगदे महाराज। सारी दुनिया जद किते देखो अमरीका वर्गे मुल्क जोर लगा पिया, अग लग गई। पंजाब च पराली का रौला पाउंदे आ, उत्थे किन लाती अग। पिछे आस्ट्रेलिया च लग गई सी, हुण उत्थे लग गई। इनू रोक लैण, परमेश्वर तो बिना कोई नहीं रोक सकता। उत्थे धुआं हुण रोक लैण, बीमारी उत्थे भी तो पऊगी जिहड़ी इत्थे पैंदी आ। उत्थे इन्ना धुआं दुनिया का साह घुट हुंदा, साडे तां नहीं घुट हुंदा। 5-7 दिन की गल ही हुंदी आ। ये सरकारां दुख देण दा यतन करदियां, जिहड़े बेचारे किरती मेहनती लोग है उन्हां नूं दुखी करदे आ। कल युग का प्रभाव है। तू दाता मांगन को सगली दान ते प्रभाने। खिन मैं अवर खिने मैं अवरा। एक छिन विच महाराज तुसीं राजा बना सकते हो, एक मिनट छिन विच तुसीं मंगता बना सकते हो, तुहाडे हत्थ विच। एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज वडाणा। तू महाराज किसी नूं दाता बनाता, किसी नूं मंगता, ये तेरी मर्जी आ।
बड़े बड़े राजियां नूं नदर ओ पट्ठी जे करे सुल्ताना काहो कराइंदा सी। बड़े बड़े देखे मैं रुलदे देखे कई जिहड़े अपने आप नूं किसी टाइम समझदे सी, फिर मुड़ के लस्सी नाल रोटियां चोपड़दे देखे हो। महाराज तेरी निगाह पुट्ठी हो जाए, बड़े बड़े राजियां नूं घाह वरतों हल हल के करके सट देना। तेरी नदर पुट्ठी हो जाए, नदर ओ पट्ठी जे करे सुल्ताना काहो दर मंगण पिख ना पाइंदा, फिर दर मंगदियां नूं पिख भी नहीं पाउंदा। महाराज तेरी निगाह सिद्धी होवे, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨਾ ਖਿਨ ਮੈਂ ਆਵਰ ਖਿਨ ਮੈਂ ਆਵਰਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲਗੇ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨੀਵੇਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ। पर साडे बापू जी नूं कह दिंदे हुंदे सी, उन्हां तो छोटे सी, उन्हां नूं कई वारी बचन साडे पिता जी ने सुनाया, कहंदे बचन कई वारी उन्हां नूं कह दिंदे सी, क्योंकि साडे बापू जी थोड़ा कॉम्युनिस्ट सीगे, बिरती ते थोड़ा शराब शरूब भी पी लैंदे सी, ते उन्हां नूं कई वारी बचन कह दिंदे सी, दया सियां तूं मैनूं बंदा ना समझ, मैं बंदा नहीं है, मेरे को सारे खजाने ने चाबियां, जिन्हों मर्जी मैं राजा बना सकदा, जिन्हों मर्जी मैं ला सकदा, मेरे कोल पावर है, तू मेरा कहा मन ला। खिन मैं अवर खिने मैं अवरा, जो मर्जी कर दे वो मर्जी है। ये तो साड़ी तो बेनती करनी नहीं सानू आउंदी, बेनती करनी आ जाए वो कोल तां भंडारे भरे पे, वो तो खाली मोड़दा ही नहीं किसी। अचरज चलत तुम्हारे मारा हैरानी करन वाले, ये तुहाडे जिहड़े महाराज चरित्र चल जो चरित्र तुसीं कर रहे हो, जो दुनिया में वरत रहा, ये हैरानी करने वाले है महाराज। या दुनिया की ताकत को किसी राज भखारी नूं राजा बना देवे, दुनिया की ताकत कोई बना के दसे भखारी नूं राजा, या कोई दुनिया की ताकत राजे नूं ला के दसे भखारी बना के दसे, ये रब कोल पावर है। परमेश्वर को महाराज अचरज रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो, ऊंचो अगामा पारे। रूड़ो हुंदा बहुत ज़्यादा बरीक, जिहदा पता ही ना होवे, कोई उहदा हथ पैर की पहुँच तो ही परे होवे। गूड़ा हुंदा एक रंग पे जिहड़ा कदी लिथे ही ना, जिहड़ा पक्का ही चढ़ गया, हत्थां पैरां की पहुँच तो परे है। तो उहदा यह भी नहीं भी रंग अज होर है कल नूं होर है। गैर गंभीरो, जिहड़ा कोई था बन्ना है ही नहीं, जिहदा समुंदर गैर गंभीर है। ਉੱਚੋ ਅਗਮਾ ਪਾਰੇ, महाराज सारिਆਂ तो तुसीं ਉੱਚੇ हो, ਤੁਹਾਡੇ तो ਵੱਡਾ कोई नहीं है। पंजवें पातशाह जी महाराज इन्ने बचन सिदक भरोसे दे कीते आ, परमेश्वर की सिफत कीती है, सुनिया करो, ਇਹਦਾ सिफत बहुत लाभ है, ਇਹਦਾ सुन लिया जी। ये नैट ते कल नूं चढ़ जानी, मुड़ के किसी ने सुननी, फिर सुन लियो भी सब। गुरु अर्जन देव महाराज ने किन्ने सिदक भरोसे दे बचन कीते आ। साध संग जो तुम्हें मिलायो, महाराज मैनू साधुआं ने कृपा की तां तुहाडा मिलाप होया, अपने आप नहीं मिलिया। अंच लगे कि साध का तरना ये संसार, महाराज किसी साधु की कृपा हो जाए। कबीर साहब कहते कमीर जम घाठेगा बुरा है वो नहीं सहया जाए। एक जो साधु मोहे मिलया तेन लिया चला, मैंने तो साधु मिल गया और मैनू आसरा देता। जिन्होंने साधु मिल गया, चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज ने बड़े सुंदर बचन अपनी रचना तो किए है। कहते जिन्होंने संत नहीं मिले उन्होंने की हाल है, जिन्होंने मिल गया उन्होंने की हाल है। हुक्मनामा तो लम्मा चौड़ा है, वो मैं थोड़ी जी उसकी व्याख्या बहुती नहीं करनी, मैं दो पंक्तियां दसूँगा। गुरु रामदास महाराज कहते बिन गुर मूड़ भे है मनमुख, ये जैत श्री राग विच है। ते मोह माया नित फाथा, तिन साधु चरण न सेवै कबहूँ, तिन सब जन्म अकाथा। जिन्हों ने साधुओं के चरणों की सेवा नहीं की, जन्म व्यर्था चले गए। चौथे पातशाह जी का वचन, जिन साधु चरण साध पग सेवे, जिन्हों ने साधुओं के चरणों की सेवा की है। कौन कहता संतां नूं मत्था नहीं टेकना, जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफलियो जन्म सनाथा, उन्हों जन्म सफला हो गया। मोको कीजै दास, दास दासन को हर दया धार जगन्नाथा। मैनू महाराज अपने दासां दा दास बना ला,
ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈ। ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸਹੇਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੇੜ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੋ ਸੁਣੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਪੇਖਤ ਹੀ ਨਾਨਕ। ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਰਹੂਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਪੇਖਤ ਹੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਖ ਹੋ ਮਹਾਰਾ, ਵੱਡੇ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਚਲੋ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗੀ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੂਗੀ, ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਿਓ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਭੋਗ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਜਾਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦੂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।